Greetings of the day. I, Chavi Gupta, welcome you all in today's session. Class 8, we have done the chapter crop production and management. Now we will do an exercise that is the back exercise known as NCRT exercise. Now the first question is select the correct word from the following list and fill in the blanks. The words are float, water, crop, nutrients and preparation. Okay, these words are need to be filled in the blanks given to you. Now I have given the with answer. The same first question, first part is the same kind of plants grown and cultivated on a large scale at a place is called. आपको एक ही तरह का प्लांट जब बहुत बड़े स्केल पे ग्रो किया जाता है और एक ही प्लेस पे ग्रो किया जा रहा है, एक पर्टिकुलर प्लेस पे ग्रो किया जा रहा है, उसे आप क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड अ क्रॉप. द नेक्स्ट पार्ट इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप. क्रॉप को ग्रो करने से पहले फर्स्ट स्टेप क्या होता है आपका? दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. सॉइल को आप प्रिपेयर करते हैं. नाउ थर्ड पार्ट इज डैमेज सीड्स वुड डैश ऑन द टॉप ऑफ वाटर. वी हैव डिस्कस that we have two types of seeds, good or bad. Okay, so good seeds that are heavy in weight and will sink in water. But what about bad seeds? The bad seeds are known as damaged seeds. So the damaged seeds will be hollow from inside. वो अंदर से hollow होंगे. जब hollow होंगे तो वो float करेंगे water के surface पे. So that means damaged seeds would float on the top of water. Now next, फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशेंट, आपको क्रॉप ग्रो कराने आपको क्या क्या चाहिए? सफिशेंट लाइट, सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए और न्यूट्रिएंट्स चाहिए जो सॉइल में होने चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैचअप है कॉलम ए एंड कॉलम बी. मैंने आपको मैचअप करके दिया. कॉलम बी में एक कॉलम एक्स्ट्रा दे रखा है आपकी एक्सरसाइज में, तो डोंट वरी, ज़रूरी नहीं कि सारे ही कॉलम्स आपके मैच हो जाए कॉलम ए से. ओके, समवन कैन बी लेफ्ट. नाउ फर्स्ट इज खारिफ क्रॉप. खारिफ क्रॉप इज योर पैडी एंड मेज. That means that requires excess amount of water. जिसको ज़्यादा amount of water चाहिए, that is your kharif crop. Now rabi crop, wheat, gram, peas, जिसको moderate amount of water चाहिए and इनका growing season October to December होता है. Now next is chemical fertilizers. What are chemical fertilizers? That is urea and superphosphate. Now organic manure, animal excreta, cow dung, urine and plant waste. Okay. Now the next question is give two examples of each. आपको दोनों के दो एग्जाम्पल्स देने हैं. फर्स्ट इज खारिफ क्रॉप. खारिफ क्रॉप का एग्जाम्पल क्या है? पैडी एंड मेज. राबी क्रॉप इज व्हीट एंड पी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग. आपको बेसिकली जो क्वेश्चंस दे रखे हैं इनका मीनिंग समझाना है आपको. पैराग्राफ का मतलब क्या है कि आपको इनका मीनिंग समझाना है. द फर्स्ट पार्ट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है कि आप सॉइल को प्रिपेयर करें, तैयार करें, सो दैट जो आप प्लांट ग्रो कराएं या क्रॉप कोई भी लगाएं वो इजीली ग्रो कर जाए एंड उसमें किसी भी चीज़ की कमी ना हो. ओके, सो द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप इन एग्रीकल्चर. द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज डन टू लूजन द सॉइल. सॉइल को लूज करते हैं बाय यूजिंग अ खुरपी which is essential for the root penetration into the soil. This allows the root to breathe easily. हम मिक्स करते हैं ना सॉइल को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप. दैट इज सो दैट द रूट्स कैन ब्रीथ ईजली, उनमें प्रॉपर एयर हो. लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउज द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच हेल्प द सॉइल to keep the soil fertile by adding humus to the soil. Loosening of soil also bring nutrient-rich soil to the top layer, which is essential for the growth of plants. The next part is sowing. What is sowing? That आप seeds को soil के अंदर डाल रहे हैं, so it is known as sowing. Sowing is an important process in crop production. First, healthy seeds are selected before sowing. After selecting healthy seed, sowing is done by either traditional method or by using equipment called seed drill. Now next is weeding. What is weeding? Weeding क्या था? जो unwanted plants है जो आपके main crop की growth को hamper कर रहे हैं, रोक रहे हैं, so it is known as, आप उसे रिमूव करते हैं तो रिमूविंग के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वीडिंग बोलते हैं. सो रिमूवल ऑफ अननेसेसरी प्लांट्स फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग. Weeding compete with crop plants for nutrients and water. This will reduce the yield of the desired crop. Weeds also interfere while harvesting and get mixed with the crop. अगर आप नहीं हटाएंगे तो क्या होगा? आपके मेन क्रॉप के साथ मिक्स हो जाएंगे. सो सम वीड्स आर पॉइस, आपको पता है वीड्स, कुछ वीड्स पॉइसनस भी होता है एनिमल्स और ह्यूमंस के लिए. तो टिलिंग के टाइम पे, टिलिंग सबसे कॉमन मेथड है कि आप वीड्स को रिमूव कर दें
क्रॉप्स को सो करने से पहले। सो मैनुअली आप उसे हैंड से रिमूव कर देते हैं सो दैट प्लांट की ग्रोथ हैम्पर ना हो। वीडिसाइड्स आर स्प्रेड टू गेट, आप कुछ केमिकल्स भी यूज़ करते हैं, दैट इज योर वीडिसाइड्स, जो आपके वीड्स को रिमूव करते हैं। बट आप जब वीडिसाइड यूज़ करते हैं उससे फार्मर की हेल्थ पे कुछ इफेक्ट पड़ सकता है। सो हम केमिकल मेथड्स थोड़े कम यूज़ करते हैं बट हम यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या था कि आपने हाफ क्रॉप को कट किया, हार्वेस्ट कर लिया, हार्वेस्ट करने के बाद आपको ग्रेन्स अलग चाहिए कि आपका मेन क्रॉप तो ग्रेन्स है। सो उन ग्रेन्स के प्रोसेस को कलेक्ट करना है योर थ्रेशिंग। Process of separating the chaff from the crop is known as threshing. Threshing is carried by a machine called combine. Combine क्या था, जिसमें हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों इकट्ठे लगे हो। हार्वेस्टर क्या करता है, क्रॉप को कट करता है, थ्रेशर क्या करता है, ग्रेन्स को सेपरेट करता है। सो दोनों का फंक्शन जिस मेन एक ही मशीन में हो जाता है, दैट इज कंबाइन। So threshing is done by winnowing, also done by winnowing, where to blow of wind is used to separate the chaff from crops. Now next question is explain how fertilizers are different from manure. Fertilizers manure से different क्यों है? Now fertilizers are inorganic substance, हमने पढ़ा था। manure आपका organic substance होता है। fertilizers आप artificially prepare करते हैं, means labs में prepare करते हैं। और manure आपका biodegradable waste से prepare होता है। ये आपका ह्यूमन एक्सक्रीटा भी हो सकता है, एनिमल वेस्ट भी हो सकता है, प्लांट और एनिमल प्लांट वेस्ट भी हो सकता है, आपका वेजिटेबल पील्स भी हो सकता है। जब ये डिकम्पोज हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, सड़ गल जाते हैं, तो वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाता है, वो फील्ड्स में प्रिपेयर किया जाता है मैन्योर्स। नाउ फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल, सॉइल की ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता, जबकि मैन्योर सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करता है। नाउ रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, फर्टिलाइजर रिच इन स्पेसिफिक प्लांट न्यूट्रिएंट है, सिर्फ प्लांट न्यूट्रिएंट नहीं है। कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट का ही न्यूट्रिएंट्स में एक्सेस में होगा, सारे नहीं होंगे। मैन्योर आपका लेस न्यूट्रिएंट होता है, मीन्स उसमें हर एक न्यूट्रिएंट इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होगा, बट कोई भी न्यूट्रिएंट एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर्स का, आपकी सॉइल पे इफेक्ट पड़ेगा एंड सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो सकती है। बट मैन्योर अगर आप लॉन्ग टर्म में यूज़ करते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, खराब नहीं होती। लॉन्ग टर्म यूसेज हैज़ एडवर्स इफेक्ट्स ऑन सॉइल बाय यूजिंग फर्टिलाइजर्स, बट इन मैन्योर्स इट इम्प्रूव्स द सॉइल फर्टिलिटी। Now next question is what is irrigation? Describe two methods of irrigation which conserve water. Now irrigation क्या आपको वो बताना है, और कोई भी ऐसे दो मेथड्स जिस मेथड से वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। हम सब ने पढ़ा था दैट वी हैव ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड्स। ट्रेडिशनल मेथड्स में आपका राहत था, धेकली था, उन सब केस में क्या हो रहा था, आपका वाटर वेस्ट हो रहा था। ओके, सो हम मॉडर्न मेथड की तरफ मूव कर रहे थे, दैट इज कि आप जहाँ पे वाटर को सेव कर रहे हैं। सो व्हाट इज इरिगेशन? फर्स्ट, irrigation is a supply of water to the crops at regular intervals is called irrigation। आप वाटर को रेगुलरली सप्लाई कर रहे हैं एक रेगुलर इंटरवल पे, उसे हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन बोलते हैं। मेथड्स क्या है इरिगेशन के? टू कंजर्व वाटर इज फर्स्ट ड्रिप इरिगेशन, सेकेंड इज स्प्रिंकलर सिस्टम। व्हाट इज ड्रिप इरिगेशन? हेयर द वाटर गोज ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप ड्रॉप के थ्रू जाता है। ड्रिप इज बेसिकली जैसे ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ती है आपको, उसमें क्या होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप आता है ग्लूकोज आपकी बॉडी में। सेम वे में यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन में ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर डायरेक्टली आता है रूट्स के ऊपर, सो दैट वाटर कैन बी कंजर्व्ड एंड ऑल्सो हेल्प्स इन अवॉइडिंग वीड्स। ओके, नाउ हेयर द वाटर गेट्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली इनटू द रूट्स। दिस मेथड इज वेरी यूजफुल एज इट conserves the water and also helps in avoiding weeds. Now next method is sprinkler system. This method is in use in mainly uneven land where sufficient water is not available। जहाँ पे proper amount of water available नहीं है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, like a fountain it works। तो perpendicular pipes होते हैं आपके, उनके पास एक rotating nozzles होती है टॉप के ऊपर जो ज्वाइंट होते हैं मेन पाइपलाइन से रेगुलर इंटरवल्स पे। When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzles, nozzles में से बाहर निकलता है and it gets sprinkled on the crop as if it is raining। like आपने चक दे मूवी देखी, उसमें लास्ट सीन में क्या होता है, आपकी बिल्कुल लास्ट में जब ग्राउंड प्रिपेयर किया जाता है, आपको ग्राउंड को वेट करते हैं किसके थ्रू, आपको एक नोजल बाहर निकलती है और वो सारे डायरेक्शन में वाटर को स्प्रे करती है, दैट इज नोन एज स्प्रिंकलर सिस्टम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ वीट इज सोन इन द खारिफ सीजन। अगर वीट आप खारिफ सीजन में सो कर आते हैं तो क्या होगा? नाउ आपको पता है वीट राबी सीजन की क्रॉप है,
दैट मीन्स मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर नहीं चाहिए. तो वो कंडीशन क्या है, अनफेवरेबल है उनके लिए. टेम्परेचर अनफेवरेबल है क्योंकि टेम्परेचर का वेरिएशन होता है ना. ये विंटर सीजन की क्रॉप है आपकी. सो विंटर सीजन में क्या होता है, टेम्परेचर थोड़ा कम होता है. सो वीट क्रॉप को अगर आप खरीफ सीजन में ग्रो कराएंगे, wheat crops may get destroyed if sown in kharif season because of unfavorable temperature. unfavorable जो आपके फेवर में नहीं है. सो wheat के लिए क्या फेवर में नहीं है, टेम्परेचर नहीं है, देन पेस्ट नहीं है वहाँ के, एंड कंडीशंस अडेप्टेबल नहीं है ताकि प्लांट ग्रो कर जाए. ऑफ अनफेवरेबल टेम्परेचर, पेस्ट एंड अडेप्टेबल कंडीशंस फॉर द प्लांट्स टू ग्रो. खारिफ कम ड्यूरिंग द रेनी सीजन, रेनी सीजन के टाइम पे आता है. Hence, it is not a wise idea to grow wheat in Kharif season. Now, next question is explain how soil gets affected by the continuous plantation of crop in a field. Now, a continuous plantation is कि आपने फर्स्ट क्रॉप ग्रो करी, देन सेकंड क्रॉप ग्रो करी, देन थर्ड क्रॉप ग्रो करी, देन फोर्थ. आप रेगुलरली क्रॉप ग्रो कराते जा रहे हैं. आप बीच में सॉइल को टाइम नहीं दे रहे कि वो खुद प्रिपेयर हो जाए, उसमें न्यूट्रिएंट्स की जो कमी है वो फिक्स हो जाए. ओके, सो अल्टीमेटली क्या होगा, लाइक आपने क्या किया, आपने फूड खाया, आपने 8 o'clock ब्रेकफास्ट किया, देन आप 9 o'clock फिर ब्रेकफास्ट करें, देन आप 10 o'clock कुछ ड्रिंक कर लें, देन 11 o'clock आपने मिल्क ले लिया, देन 12 o'clock आपने फिर लंच कर लिया, देन 1 o'clock आपने फ्रूट ले लिया, देन 2 o'clock आपने फिर से लंच किया. सो दैट मीन्स कि आप 8 to 2 रेगुलरली वर्क कर रहे हैं. ओके, सो इससे क्या होगा, आपका स्टमक अपसेट हो जाएगा. तो सेम केस आपका सॉइल के साथ है, क्रॉप्स के साथ है. अगर आप रेगुलरली क्रॉप्स ग्रो कराएंगे तो आपकी सॉइल ख़राब हो जाएगी, आपके क्रॉप्स में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे. तो वही आंसर एक्सप्लेन कर रहे हैं हम यहाँ पे. प्लांट्स रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ. विदाउट ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट्स, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे, प्लांट डाई कर जाएगा. कॉन्टिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स रिजल्ट्स इन डिप्लीशन ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स. कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम एक्सेट्रा. ओके, so this results in the decrease of yield due to loss of nutrients. सेम वे में जैसे आप 8 to 2 रेगुलरली फूड खा रहे हैं तो आपका स्टमक अपसेट हो गया, आपके स्टमक ने वर्क करना बंद कर दिया, आपकी बॉडी में वर्किंग पावर लो हो गई, एनर्जी लेवल लो हो गया. तो सेम केस यहाँ पे प्लांट्स का होगा कि वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे एंड प्लांट प्रॉपर्ली ग्रो नहीं करेंगे. सो जहाँ पे आपके 10 क्रॉप्स ग्रो करने चाहिए तो वहाँ पे सिर्फ आपका 1 or 2 ग्रो करेगा. ओके, बिकॉज वहाँ पे प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं है. Hence there should be a gap between crops in order to get a good yield. इसलिए आपको क्रॉप्स के बीच में थोड़ा टाइम गैप देना चाहिए. Now what are weeds? Weeds क्या होती है and how we can control them? In a field many other undesirable plants may grow. बहुत सारे अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं प्लांट मेन क्रॉप के साथ. सो इन अनडिजायरेबल प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं. और हम उन्हें कंट्रोल कैसे करेंगे, वीड कैन बी कंट्रोल बाय मेथड्स कॉल्ड वीडिंग. वीडिंग के मेथड से कंट्रोल करेंगे, दैट इज यू कैन टिल इट. आप टिलिंग कर सकते हैं क्रॉप्स ग्रो कराने से पहले, उनको अपरूट कर सकते हैं. अपरूट से आप सॉइल में से उनकी रूट्स बाहर निकाल सकते हैं, वीड्स को किल कर सकते हैं, विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड अप विद द सॉइल. अब आपने उन्हें बाहर निकाला, सॉइल के साथ मिक्सअप हो जाएंगे, सॉइल के साथ मिक्सअप होंगे तो अल्टीमेटली वो सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे पर दोबारा से रीग्रो नहीं करेंगे. वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स. अब आप कुछ केमिकल्स भी यूज कर सकते हैं, दैट इज वीडीसाइड्स सच एज 2,4-D. Now next question is arrange the following boxes in proper order to make a flow chart of a sugarcane crop. आपको एक sugarcane crop है, आपको उसके अकॉर्डिंगली सब कुछ प्लान आउट करेंगे. सबसे पहला स्टेप कौन सा होगा, देन सेकंड कौन सा होगा, देन थर्ड कौन सा होगा, देन फोर्थ कौन सा होगा. ना आप सबने पढ़ा है, आपके पास बॉक्स है, बॉक्स में फर्स्ट नंबर पे सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री, आप क्रॉप को शुगर फैक्ट्री भेज रहे हैं. सेकंड नंबर पे आप इरिगेशन कर रहे हैं, थर्ड नंबर पे हार्वेस्टिंग है, फोर्थ पे सोइंग है, फिफ्थ पे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है, सिक्स पे प्लगिंग द फील्ड एंड सेवन्थ पे मैन्योरिंग है. ऑब्वियसली दीज आर द जम्बल्ड अप, आपको एक प्रॉपर करेक्ट ऑर्डर चाहिए. नाउ वी विल डू फर्स्ट ओवर हेयर देन मूव नेक्स्ट टू द स्लाइड व्हाट इज द करेक्ट आंसर. फर्स्ट इज आप सॉइल को प्रिपेयर करेंगे. ओके, नाउ सेकेंड इज कि आप फील्ड को प्लग करेंगे, थर्ड आप सोइंग करेंगे, फोर्थ आप इरिगेशन करेंगे, फिफ्थ आप मैन्योरिंग करेंगे, सिक्स्थ आप हार्वेस्टिंग करेंगे एंड देन लास्ट में आप क्रॉप को शुगर फैक्ट्री भेजेंगे. नाउ सी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, see preparation of soil is your first step.
देन प्लगिंग द फील्ड इज योर सेकेंड स्टेप, देन सोइंग इज योर थर्ड, सोइंग में क्या था, सीड्स को सो करना था। फोर्थ आप मेन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करेंगे, देन फिफ्थ आप इरिगेशन करेंगे, वाटर सप्लाई करेंगे। सिक्स आपने प्रोटेक्शन कर ली, यहाँ पे ऑप्शन में था ही नहीं, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, देन आप हार्वेस्टिंग करेंगे, देन सेंडिंग अ क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ क्लूज। नाउ आपको ये कुछ क्लूज दे रखे हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग भरना है। मैंने आपको पजल सॉल्व करके दे रखी है। फर्स्ट इज प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप, अगर आप वाटर क्रॉप को प्रोवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा आपका, इरिगेशन। नाउ कीपिंग क्रॉप्स ग्रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशन, अगर आप ग्रेन्स को रख रहे हैं बड़े टाइम के लिए प्रॉपर कंडीशंस में तो हम क्या बोलते हैं, स्टोरेज बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज फिफ्थ, सर्टेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल, अगर एक ही तरह का प्लांट ग्रो किया जा रहा है बहुत बड़े स्केल पर, हम क्या बोलेंगे, क्रॉप बोलेंगे। ओके, नाउ अ मशीन यूज फॉर कटिंग द मेच्योर्ड क्रॉप, अगर आप एक क्रॉप जो मेच्योर हो चुकी, प्रॉपरली ग्रो हो चुकी है, आप उसे कट कर रहे हैं, उसके लिए अगर आप कोई मशीन यूज कर रहे हो उसे आप क्या बोलेंगे, हार्वेस्टर। प्लीज रिमेंबर यहाँ पे थ्रेशर कंबाइन नहीं आएगा, बिकॉज कंबाइन वो मशीन है जो हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग दोनों करता है, एंड हार्वेस्टिंग मीन्स कटिंग। हम यहाँ पे सिर्फ कटिंग नहीं, हमें सिर्फ यहाँ पे कटिंग पूछा गया तो इसलिए हम हार्वेस्टर यूज़ करेंगे। अगर क्वेश्चन पूछता कि आपको कटिंग और थ्रेशिंग दोनों इकट्ठे करनी है तब हम यहाँ पे फिल करते हैं कंबाइन। ओके, नाउ अ राबी क्रॉप दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पल्सेस, कैसी राबी क्रॉप जो एक तरह की पल्सेस है, दैट इज योर ग्राम। A process of separating the grain from chaff is your winnowing. Now, class, please do all these NCERT questions in your notebook, fair notebook, and submit to me. That's all for today. Thank you.